So this is regarding Kent's 12 observations. Do you know what is Kent's 12 observation? Perhaps अगर नहीं भी जानते तो शुरू की बात तो मैं बता ही दूं कि ये केंट्स का अपना ऑब्जर्वेशन है, जो 12 ऑब्जर्वेशन को उन्होंने बताया है हम लोगों को। तो आइए हम लोग देखें कि केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये चाहेंगे आप लोग से इंटरैक्ट करना। सो व्हाई डू वी रिक्वायर टू स्टडी केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से बताएं, व्हाई डू वी रिक्वायर केंट्स टू स्टडी केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। व्हाई शुड स्टडी, ये उनका ऑब्जर्वेशन है, व्हाई शुड आई बॉदर, हमें क्या लेना देना। व्हाई शुड वी स्टडी। नीरज कुमार यादव जी, आपने तो स्टेथोस्कोप को डॉक्टर के लोगो पे ही टांग दिया है, बताओ। हाँ बोलिए। Why should we study Kent's 12 observations? डॉक्टर साहब, आप लोग सब डॉक्टर होने वाले हैं, बस थोड़े ही कदमों की दूरी रह गई है। बताइए, Why should we study Kent's 12 observation? वो केंट का ऑब्जर्वेशन है, हम क्यों पढ़े बताओ। अनमोल गुप्ता। बाप रे, अनमोल गुप्ता जी बिजनेस करने लग गए अभी से, कैसे बता पाएंगे। एनीबडी, मैं वेट कर रहा हूं। So long as you will keep me waiting, class will be late. क्यों रिचा, क्यों सोच में हो। रिचा क्यों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तो है, लेकिन क्यों सोच में हो बताओ जल्दी फटाफट, हमें क्यों To पढ़ना observe the चाहिए। process of a case, sir. क्या? To observe the process of a case. कौन बोल रहे हैं पहले नाम बताइए। तो रिचा नहीं बोल रही है। Sir, it's baby toy. हाँ बेबी थोई, नहीं पता चला। कोई भी Sir. बोलेगा गाना तो पहले अपना नाम बोलेगा। Yes, sir. Baby toy speaking, sir. हाँ बेबी थोई, यस टेल मी, व्हाई To शुड बी observe the स्टडी। progress of a case, sir. To observe progress of a case. Yes, sir. Okay, so it is not related to a single case, but it is related to the several case, and these are the observation during Dr. Henneman's clinical practice. When he practiced these things, he found there are several things which must a physician know and understand. That is why you should also know. So that why should we study? We should study these things because we should not repeat those mistakes which are said not to repeat. That is why we require to study this Kent's 12 observation. So let us see that what is that thing. So as I asked you the first question, why do we require to study Kent's 12 observation? As I told, because it is the observation of the Kent's. What is special to us? क्यों हम पढ़े? Then, so we did require to study Kent's 12 observation because the following things. What are the following things? These are the observations observed by Dr. Kent himself during his clinical practice, which he has explained well in his philosophy book, Lectures on Homeopathic Philosophy. Why I forced to write this? मुझे इसलिए ऐसा लिखना पड़ा क्योंकि आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए और ये किताब आप लोगों के पास हो जानी चाहिए। That is Lectures on Homeopathic Philosophy by Kent. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। There are these are the true observation by Kent and very much valuable during our clinical practice.
After understanding these observations, we learn how to handle several types of cases during our clinical practice in respect of posology, remedy response, aggravations, follow-up, understanding disease pathology, palliation, suppression, cure, etc. So that we should not repeat the mistakes and cure the patient in our clinical practice. तो सबसे important बात ये है कि जो केंट्स का 12 observations है, through his observation in individual case, उन्होंने बताने की कोशिश की है several aspects of homeopathy which is very much essential in the clinical practice. जैसे कभी एग्रावेशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा होम्योपैथिक एग्रावेशन है, कौन सा मेडिसिनल एग्रावेशन है, कौन सा डिजीज एग्रावेशन है. सिमिलरली हमें ये भी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज पैलिएशन, कब हम पैलिएशन की ओर जाते हैं, कैसे कंडीशन को पैलिएशन बोलते हैं, कैसे कंडीशन को हम सप्रेशन बोलते हैं. लाइकवाइज दैट सिमिलरली हम किसी को जब मेडिसिन देते हैं तो उसका रिस्पांस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं. जैसे हालांकि आपको हमने रेमेडी रिस्पांस बताया है, रेमेडी रिएक्शन बताया है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स आल्सो कि अगर कुछ गलती हुई तो उसको कैसे सुधारा जाता है और क्यों गलती हुई. ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है डॉक्टर केंट साहब ने अपने केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन में. तो लेट अस सी वन बाय वन, बट बिफोर फर्दर गोइंग I would like to tell you that this is the first observation which I am going to explain to you. So this is the Kent's first observation, and in this the Kent has said that a prolonged aggravation and final decline of the patient. एक बहुत लंबे समय एक एग्रावेशन होता है, लंबे समय का एग्रावेशन, और पेशेंट का डिटेरियोरेशन कंटिन्यूड रहता है. Now it is you who need to explain that why these phenomena we are observing in the case. So tell me, dear students, tell me when it can be possible, that there will be a prolonged aggravation and final decline of the patient. So अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, आप उसको एग्जामिन करते हो, आप उसके केस टेकिंग करते हो, आप उसको एक मेडिसिन देते हैं, आप अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टडी के आधार पर एक डोज देते हैं, फिर वो पेशेंट एक ऐसा शो करता है कि उसको प्रोलॉन्ग एग्रावेशन होता है और डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है पेशेंट को. तो क्या हुआ? अब इस क्या हुआ को पढ़ना ही केंट्स का ऑब्जर्वेशन बोलते हैं. ठीक है, तो आप बताइए कि क्या हुआ होगा ऐसे केस में, बताइए. नाउ इट इज योर टर्न. Now it is your turn to speak. Hello, sir. Baby Toy Yes. speaking. Yes, baby Thoi. Sir, according to me, I think it's because of the remedy selected was given in a very higher potency and dose, and the remedy was not similimum at all. So at one point you are right, at one point at another point you are wrong. Why I'm saying right and why I'm saying wrong? Now let us discuss that why you are right. You have told two things. First, the remedy's potency was too much high, and second point, you told me that remedy was not a similar, not a homeopathic to the case. Had it not been homeopathic, it would have not acted at all. क्यों नहीं एक्ट करता? क्योंकि हमने रेमेडी रिस्पॉन्स में आपको बताया था. क्या बताया था? क्या बताया था? एक खास बात बताई थी. लेट अस रिफ्रेश such things or those things which we have already studied. हमने आपको पहले ही बताया. आप समझते हैं? जानवी, जानवी इधर ध्यान दो. जानवी किधर ध्यान है भाई तुम्हारा? तुम क्या सोच रहे हो? क्लास से बाहर हो, घर पे हो? ऐसा नहीं है, यहाँ भी वही बात है जो क्लास में बात है. ठीक है,
तो कहना ये है कि ये कैसे पता चलेगा? आपको मालूम है कि आपको होम्योपैथिक में कितनी डोज देनी है, कितनी मात्रा में देनी है? बोलिए। Minimum dose, sir. मिनिमम डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ डोज विच इज। साकेत, या तो आप जाके हंस लीजिए, नहीं तो मैं आपको रूम से हटा देता हूं। साकेत, बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा है ये, ठीक है? नहीं तो यहां से बहुत आसान है, आपको गेट आउट भी बोलने की जरूरत नहीं, यहां से मैं रिमूव कर दूंगा, दैट्स ऑल। समझ गए साकेत जी? आई सैल्यूट यू। ठीक है। सो रेमेडी जो दिया जाता है वो मिनिमम दिया जाता है। एंड व्हाट इज द मिनिमम डोज? साकेत को ना बहुत सारा नॉलेज है, ही इज हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज बिकॉज आई डोंट नो व्हाई ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज एंड देन ही लाफ्स, क्या डॉक्टर पढ़ा रहा है, क्या डॉक्टर वर्मा पढ़ा रहा है, तो सब इसको आता है ऑलरेडी, दैट इज व्हाई ही इज लाफिंग। लेकिन अगर आप ज्यादा लाफिंग करते हो, ज्यादा जानते हो, तो हमको रूम से बाहर करने में तो 1 सेकंड लगेगा, कुछ करना तो है नहीं साकेत जी, बहुत आसान होता है ना। अभी हाथ भी जोड़ना नहीं पड़ता है, गेट आउट भी बोलना नहीं पड़ता, यहाँ पे राइट क्लिक किया, रिमूव, दैट्स ऑल, खत्म कर। ठीक है। तो जो मिनिमम डोज है, एंड व्हाट इज द मिनिमम डोज? मिनिमम डोज इज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्राइमरी एक्शन टू द केस। यानी कि एक वो जो कि मेरा डिजायर है, हमारा डिजायर क्या है? however to induce the primary action of the medicine which I had given. And now it may be the minimum dose, 1 dose or 2 dose, it may vary according to the case. So first thing what Baby Thoy has told, and why a minimum dose will work. Now the second question, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हम होम्योपैथिक में बहुत बोलते हैं ना, चाहे पेशेंट जो आपके पास आता है, अगर आप अच्छे होम्योपैथ हो तो आप समझते हो कि आपका एक डोज सफिशिएंट है पेशेंट को क्योर करने के लिए या इंप्रूवमेंट करने के लिए, आप समझते हैं। बट पेशेंट इज इग्नोरेंट। अगर एक पुड़िया दे दोगे, वो कहेगा मेरी इतनी लंबी बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी, और एक पुड़िया दे के हमें क्या होगा, तो वो शायद आप पे भरोसा नहीं करेगा। लेकिन यू नो वेल this a small pudiya, the dose is sufficient to produce the primary action which you require, which should produce a similar disease which is stronger to the existing disease. तो एक तो पहली बात है। और ये कब पॉसिबल होगा कि मिनिमम डोज ही वर्क करेगा, कब? नाउ दिस इज टू बी आंसर्ड। क्यों वर्क करेगा, दैट इज टू बी आंसर्ड और दैट इज टू बी अंडरस्टूड कि क्यों, आखिर क्या ऐसी खास बात है होम्योपैथी में? ग्लाइकोडिन पूरा सिरप पीते तब जाके खांसी ठीक होती है। आखिर होम्योपैथी में ऐसी क्या है जो एक पुड़िया ही सफिशिएंट है? कौन बताएगा इसका आंसर? क्योंकि अब आप लोग ये काम करने वाले हो, कौन बताएगा ये बात? व्हाई? बताइए। कोई तो बता दो। व्हाई a minimum dose or a dose or a pudia will be sufficient to produce a primary action that is a similar artificial disease which will be the stronger than the existing disease. Vijaya Rani. बताइए। अफसाना। Good afternoon, sir. Hujure Good Ala. afternoon. My dear students, you are in final year now. घर बैठे बैठे फाइनल ईयर, ये पहली बार घर बैठे बैठे फाइनल ईयर है ना जी। कुंदन जी, कुंदन कुमार, रोल नंबर 5, घर बैठे बैठे फाइनल ईयर, इससे अच्छी बात क्यों हो सकती? इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो करते कुछ कहना है, कुछ कहना है? सर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब केस
जो है वो बहुत, जो अपन लिए हैं केस, वो डिजीज से बहुत सिमिलर रहता है। जो हम मेडिसिन सेलेक्ट किए हैं वो डिजीज से बहुत सिमिलर रहता है। तो अगर हम एक पुड़िया या मिनिमम डोज भी देंगे तो वो सफिशिएंट है कि वो एक आर्टिफिशियल डिजीज के बॉडी में डेवलप करे ड्यू टू सिमिलैरिटी। ठीक है, वेरी गुड। चलो पार्शियल हो। मैं तुम्हारी बात को आगे बढ़ाते हुए बेबी थोई पे जा रहा हूँ, क्योंकि बेबी थोई ने जो कहा कि सिमिलर नहीं होगा। सबसे पहली बात ये समझो कि जब तक मेडिसिन सिमिलर नहीं रहेगा वो एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि आप इतना मिनिमम अमाउंट दे रहे हो कि वो एक्शन कर ही नहीं सकता, उस पर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। एंड व्हाई दिस मिनिमम डोज विल वर्क? because you have selected on the totality after individualization, after taking his susceptibility, etc. So when a person is suffering from a disease, let it be whooping cough, तो जो दवा हम कौन सी दवा देंगे जो हुपिंग कफ प्रोड्यूस कर सकता है? तो जो दवा हुपिंग कफ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, अगर वही दवा देंगे जिसमें ऑलरेडी ससेप्टिबिलिटी है हुपिंग कफ को रिसीव करने के लिए नेचर से, तो वही आर्टिफिशियल हुपिंग कफ का जब मेडिसिन उसको रिसीव होता है तो बहुत जल्दी उसका एक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हम उसका सिंपल एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि आपका कोई पार्ट बॉडी का इंजर्ड है तो वो बहुत सेंसिटिव रहता है, उसमें दूसरा टच इंजरी का जरा सा लगता है तो बहुत तेज आपको लगता है, जबकि अदर हेल्थ पार्ट में जब कितना भी या उसको हर्ट कर लो, चोट लगा लो, तो उतना ज्यादा शायद नहीं पता चले आपको। तो जो पार्ट सेंसिटिव है, जो पार्ट ससेप्टिबल है और उसको इंजरी हो चुकी है, तो उसका स्लाइट टच से ही उसको वैल्यू मिल जाता है। तो जब चूंकि होम्योपैथिक में हम लोग सिमिलर मेडिसिन दे रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन पे दे रहे हैं, जो पेशेंट का नेचर है और जो पेशेंट के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है जिसके वजह से उसने डिजीज रिसीव किया है, जिस ससेप्टिबिलिटी की वजह से रिसीव किया है नेचुरल डिजीज, तो वो ससेप्टिबिलिटी अभी भी बरकरार है। तो वो चूंकि ससेप्टिबिलिटी बनी हुई है, वो डिजीज रिसीव कर सकता है, तो या नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, तो हमारी मेडिसिन आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको बड़े आसानी से उस कैच करता है। अगर ये सिमिलर नहीं होता तो इसको कैच ही नहीं करता, वो इधर उधर भटक जाता, कहीं भी जाता, कहीं भी रहता, उसको एक्शन ही नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात डॉक्टर बेबी थोई ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि हमारी मेडिसिन सिमिलर रहेगी तभी वो एक्शन करेगा। और हम लोग जब भी मैं होम्योपैथी पढ़ाई की बात करता हूं तो आप सभी को, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो अपराजिता हो, चाहे सुमित कुमार हो, चाहे कमल नयन हो, सबको दिमाग में ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारी दवा ये होम्योपैथिक दवा है और ये मिनिमम डोज पे वर्क करता है, चूंकि हम लोग सिमिलर मेडिसिन देते हैं आफ्टर इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग ससेप्टिबिलिटी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक डिजीज रिसीव करने की टेंडेंसी बन गई है, इसीलिए जो आर्टिफिशियल जो डिजीज है उसको बड़े आसानी से रिसीव करता है। जैसे हुपिंग कफ वाला, हुपिंग कफ तो रिसीव कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डायरिया या मलेरिया हो रहा हो तो जरूरी नहीं कि वो रिसीव करे। बट इफ ए पेशेंट इज ससेप्टेबल टुवर्ड्स हुपिंग कफ, वो हुपिंग कफ ही रिसीव करेगा। ठीक है, लाइकवाइज दैट। अगर यही वजह है कि हम लोगों के होम्योपैथिक सिस्टम में, तभी तो हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, तभी तो हम डेथेसिस जानते हैं कि जब एक ट्यूबरकुलर डेथेसिस का पेशेंट रहता है जिसके फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस रहता है, तो वो जब हमारे पास आता है पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए, तो हम जानते हैं कि इसको ट्यूबरकुलर डेथेसिस है बाय एग्जामिनिंग, मतलब कि आपका उसका फिजिकल एग्जामिन करो, प्लस उसका जो साइन सिम्टम लोगे, प्लस उसका जो बिहेवियर लोगे, जो उसका डेली शेड्यूल का वर्क लोगे, जो उसका नेचर रहेगा, जो उसका टेम्परामेंट रहेगा, जो थर्मल रिएक्शन रहेगा, सब ट्यूबरकुलर को मैच करेगा। तो ये पेशेंट ससेप्टेबल है, लिएबल है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस का जरा सा भी एक्सपोजर होगा, फटाफट होगा ना, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस है और ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस लिए हुए हैं, इसलिए होगा। तो इसीलिए अगर उसको दवा ट्यूबरकुलिनम पड़ेगा तो जल्दी इफेक्ट करेगा एज कंपैरिजन टू अदर मेडिसिन लाइक बेलाडोना, रस्टक्स, ब्राइनिया, लाइकवाइज दैट। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें जो सिमिलर मेडिसिन रहेगा तभी एक्शन करेगा, पहला चीज। तो ये बेबी थोई को ये कहना चाहते हैं कि पहला पॉइंट तुम्हारा सही हो सकता है कि हाई पोटेंसी दे दिया हो, सेकेंड पॉइंट इसलिए दिक्कत है कि सिमिलर नहीं रहेगा तो ये एक्शन ही नहीं करेगा, और चूंकि दवा का एक्शन हो चुका है इसलिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दवा सिमिलर था। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट स्लाइड।
बार बार शुरू से हो जाता है। So this was the slide on which we are discussing a prolonged aggravation and final decline of the patient. So they see, and this is the graphical representation. ठीक है, ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, ऐसे आपको AK दास में भी मिलेगा। इसमें ये हमने दिखाना शुरू किया है, ये जो है लाइन, ये टाइम लाइन है, ठीक है, ये ड्यूरेशन बता रहा है, और ये जो हमने किया है ऊपर का लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है ना, ये मेरे द्वारा खींचा गया। ये इस तरफ आप देखें, ये ऊपर का पॉजिटिव है, नीचे का निगेटिव है, तो इधर अमेलिरेशन है, इधर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इधर जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है, यानी जो भी एग्रावेशन होगा नीचे होगा, जो भी अमेलिरेशन होगा ऊपर होगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, और ये इमेजिनरी लाइन हमने खींचा है क्योर के लिए, उसी तरह से अगर एग्रावेशन होता रहा तो लास्ट में क्या मीट करेगा, डेथ मीट करेगा, ठीक है ना। तो ये दो इमेजिनरी लाइन, एक नीचे के साइड हमने डेथ का दिया है और ऊपर के साइड में हमने क्योर का लाइन दिया है, ठीक है। और ये जो शो कर रहा है, ये एक बेस शो कर रहा है और ये टाइम शो कर रहा है। तो ये ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे हो गया नेगेटिव, जो ग्राफ में आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे 9th 10th में, उसी की बात करते हैं। और ये टाइम ड्यूरेशन का है। आप माइक बंद करें, किसी का माइक ज्यादा आवाज कर रहा है। तो ये जो है टाइम ड्यूरेशन है। अब ये पेशेंट को देखिए, ये यहाँ से बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार। एक टाइम ऐसा आया जहां पर इसने ये डोज रिसीव किया मेडिसिन का, ठीक है, यहाँ पर डोज रिसीव किया और ये टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट ये धीरे 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 क्या कर रहा है, डिक्लाइन करते जा रहा है। इसका हमेशा से एग्रावेशन की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोई इंप्रूवमेंट का चांस नहीं। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है केंट्स के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का कि ऐसा फिनोमेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। So why this first observation was observed? The patient was suffering from some organic diseases. सबसे पहला पॉइंट ये है ना। तो अभी हम ये कहना चाहते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन वहां हुआ जहां पर पेशेंट ऑलरेडी सम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल चेंजेस से सफर कर रहा था, यानी पैथोलॉजी शुरू हो चुका था। द पैथोलॉजिकल हैज एडवांस सो मच that the organic structural destruction या deformities had already started, जैसे liver cirrhosis, जैसे अदर चीज फैटी लिवर हो, चाहे कोई और ऐसा है जैसे कि रेनल फेल्योर, ऐसा केस में जहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो चुका है ऑलरेडी, ऐसे केस में द फिजिशियंस आफ्टर टेकिंग केस, फिजिशियंस बहुत अच्छा है, माइंडेड फिजिशियंस बहुत अच्छा है, द फिजिशियंस आफ्टर टेकिंग द केस prescribe deep acting antisoric medicine, यहाँ तक सही था, but he prescribed Bebithoi high potency 1m or 10m with the whimsical approach. And this is what is whimsical approach, मतलब कि ये एक ऐसा सोच जो कि केवल वो सोच रहा है, उसके माइंड में ये फैंसीफुल सोच आ रहा है, एक कल्पना हो रही है काल्पनिक से कि मैं सोच लिया ये पूरा केस जो है सोरा का है और इसको सोरा से ही आगे प्रोग्रेस करते करते यहाँ तक पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन तक पहुंचा है और इसको एक एंटीसोरिक देंगे मेडिसिन और हाई पोटेंसी देंगे, दिस डोज विल बी सफिशिएंट टू क्योर द पेशेंट। बट द प्रॉब्लम इज दिस दैट दिस पेशेंट must have not received such high potency of the similar homeopathic medicine. Mind it. Now why I am telling similar homeopathic medicine? Because I have already told you the physician is highly qualified after having very good knowledge, but he has some whimsical approach that no, I will cure it from the one dose with the one dose, and that is why he prescribed single dose with high potency, which is a very bad thing for this case. So what happened in this case? This is the observation. The first observation, deep acting medicine in organic diseases. The observation, the primary action taken place well in the case. प्राइमरी एक्शन हो गया मेडिसिन का, चूंकि उसको क्या था, उसको तो रिसीव करना था, सिमिलर था, आर्टिफिशियल एक्शन हो रहा था मेडिसिन का, उसको प्राइमरी एक्शन में लेना था, बट देयर वाज नो एनफ एनर्जी
to produce secondary action. अब ये खास बात आई, क्यों हम ये बात बोल रहे हैं कि एनफ एनर्जी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक पेशेंट, अब आप इमेजिन करो, थोड़ा सा आप इमेजिन करो, थोड़ा सा घर परिवार दूर दराज सब किसी को देखो कि जिसको अगर लिवर सिरोसिस होगा, जिसको अगर रेनल फेलियर का केस रहेगा, उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा? बहुत डाउन, बहुत वीकेंड। तो वो ऑलरेडी वीकेंड है और उस पर है कि एक प्राइमरी एक्शन हाई पोटेंसी का पड़ जा रहा है, उसका प्राइमरी एक्शन हो जा रहा है, तो जो सेकेंडरी एक्शन जो इंटरनल आना चाहिए वो आ ही नहीं पाता है. सो there was no enough energy to produce the secondary action, hence more structural change continue. और क्या होता है प्राइमरी एक्शन में, अपना जो सिमिलर एक्शन है वो अपना हुआ जा रहा है आर्टिफिशियली to progress and patient deterioration starts, और पेशेंट का डिटेरियोरेशन शुरू हो जाता है more and more and more and so on. So inference and conclusion of this first observation क्या है इसमें? In this case पहला ऑब्जर्वेशन है कि एंटीसोरिक मेडिसिन वाज वेरी डीप. ये मतलब अब आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहला चीज हुआ बेबी थोई की बात, क्योंकि एंटीसोरिक मेडिसिन वाज डीप एंड डिस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश, और ये इस दवा की वजह से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया. क्यों? प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन. Vital reaction, that is the secondary curative action of the vital force, was impossible as the patient was too much weakened. The patient was not having enough energy to bear. First, the disease already has taken a lot of energy. Second, the energy against this primary action of the medicine, the patient could not produce the secondary curative action. And again, it may be inferred or it may be taken consideration that the case was incurable. In such cases, it has happened. In prognosis आप समझते हैं, what is the prognosis? Prognosis is the fate of the case. Fate of the case मतलब, fate of the case का मतलब होता है एक आदमी कमलियन, अब हम इसको इंट्रीनिंग देंगे. हाँ, so fate of the disease मतलब क्या रहेगा भविष्य, ऐसे डिजीज का, ऐसे ट्रीटमेंट का क्या भविष्य है, तो वेरी अनफेवरेबल है, कुछ नहीं कह सकते. ये इसका अधिकतर जो है क्योर नहीं हो पाता है और ये सकम कर सकता है. नाउ इफ सच, इस तरह की गलती अगर हो गई इस ऑब्जर्वेशन से, तो हम क्या सीखते हैं, हमें क्या करना चाहिए? पहला चीज, व्हाट टू डू, मेडिसिन इज टू बी एंटीडोटेड फर्स्ट. जो मेडिसिन आपने दिया है उसको सबसे पहले आप एंटीडोट करिए, क्योंकि एंटीडोट करना बहुत ही जरूरी है. जब एंटीडोट करेंगे तभी हमको आगे की चीजें पता चलेगी. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग? अब इसको पढ़ लिया, जान लिया, क्या अब हम सीखते हैं? बीइंग ए प्रैक्टिशनर, बीइंग ए डॉक्टर, व्हाट डू वी लर्न? तो हम लोग क्या समझते हैं? Deep acting medicine must not be given where organic disease, that is the pathological changes, has already started in the organ. हमें कभी भी deep acting medicine और high potency नहीं देनी चाहिए वैसे disease में जहां पर already pathological changes start हो गया है. And we should start with low potency only, like 36, वहां से देना चाहिए. और हमें observation को उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या रेमेडी रिस्पॉन्स होता है, उस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए. तो बताइए इसमें आपको कोई क्वेश्चन है पूछना, तो अभी हम क्लियर करेंगे. इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो भी बातें हमने बताई उसमें कुछ गलती, कुछ बुरी, कुछ नहीं समझ में आने वाली कोई अगर ऐसी बात हो तो आप मुझसे पूछे. आप अपना माइक ऑन करें और मुझसे पूछे. बोलिए, किसी को पूछना है? पूछो भाई. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कुछ अगर गलत बात बताई गई है, कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो पूछिए.
किसको पूछना है? कृति को पूछना है? नहीं पूछना है? राजीव प्रसाद को पूछना है? राजीव प्रसाद जी, राजीव प्रसाद को भी नहीं पूछना है। बेचारे मुंह फेर लिया कि नहीं नहीं पूछेंगे। शुभम, राज, बहुत आराम कर लिए, कुछ पूछना है? नजाकित? सर कौन बोला? पहले नाम। हाँ पूछिए। speaking, sir. Sir, why only antipsychotic medicine is mentioned here, but not anti-syphilitic or antipsychotic medicine? No, it may be antisyphilitic or antipsychotic also, but what happens that the SORA medicine, that is sulfur, soranum, whatever these are the medicines, they act very vulnerably, बहुत तेजी से वर्क करते हैं as compared to, जैसे कि जितना एंटीसिफिलिटिक जो मेडिसिन है लाइक सिफिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, ये सब हम लोअर पोटेंसी में देते ही नहीं है। ये सब पहले से ही डिसाइडेड है कि we should give in high potency, that is more 200 or 1 m, likewise that, क्योंकि वो सारे जो एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन आपके पास है और जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, जैसे एंटीसिफिलिटिक में सिफिलिनम है, कुछ अदर मेडिसिन में, तो कुछ ऐसे मेडिसिन है जो तो नोसोड से तैयार हुए, और अधिकतर जो है तो उन सब का एक्शन कुछ डिफरेंट होता है, और वो सब हमें हाई पोटेंसी में ही इस्तेमाल, लो पोटेंसी से करने से उसका और दूसरा एक्शन होता है, यानी कि वो फिजियोलॉजिकल डेज नुकसान करते हैं हमें, वो डिजीज को और क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, वहां पे ऑपोजिट हो जाता है। जबकि एंटीसोरिक में ऐसी बातें नहीं है। सोरा जो है वो 3200 से बहुत अच्छा एक्शन देने लगता है, 1M वगैरह तो बहुत वार्निंग दे के यूज करना चाहिए। लेकिन जहां तक थूजा का सवाल है, जहां तक मेडोराइनम का सवाल है, आपको मालूम है मेडोराइनम किससे बना है? मेडोराइनम ये एक ऐसी दवा है, ध्यान रखना, जिसमें कोई क्लू नहीं है कि किस चीज से बना है। जैसे बहुत सारे ट्यूबरकुलिनम में क्लू है कि ट्यूबरकुलोसिस से बना है, इन्फ्लुएंजिनम में क्लू है कि इन्फ्लुएंजा से बना है, बट गोनोरिया के पस से बना है सर। क्या चीज से? गोनोरिया के पस से। हाँ, गोनोरिया के पस से या गोनोरियल डिस्चार्ज से बना है। ठीक है, वेरी गुड साकेत। लेकिन ये तो बताओ इसका नाम मेडोरेनम क्यों रखा गया, गोनोरेनम क्यों नहीं रखा गया, ये बताओ जरा। ये सर नहीं पता। हाँ, ये पता करके रखना, तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन है, तुम पता कर लोगे, हमको मालूम है। ठीक, नेक्स्ट, तो ये खास बात है बेबी थोई कि हमें जो सोरा और सोरिक मेडिसिन है और एंटीसोरिक मेडिसिन है, ये जो है हमें ज्यादा हाई पोटेंसी का नहीं यूज करना चाहिए, वेयर एज एंटीसाइकोटिक लाइक थूजा, मेडोरेनम, और एंटीसिफिलिटिक लाइक सिफिलिनम और अदर मेडिसिन, even Moxol should also be started in the pathological changes from the low potency only। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। और एनी क्वेश्चन? सर हेलो। हाँ सर, कौन? नाम बोलिए, नाम बोलिए। हाँ, मनदीप, संदीप, संदीप, हाँ बोलिए संदीप। हाँ सर बोलिए। सर, किसी पेशेंट के अंदर ऑर्गेनिक चेंजेस है और हमें उसे एंटीसिफिलिटिक एंटीसाइकोटिक रेमेडीज को क्योर करना है, तो उसमें हम हाई पोटेंसी देंगे, तो क्या उसके अंदर जो ऑर्गेनिक चेंजेस है उसके अंदर कंडीशन तो नहीं करेगा और उसके आगे से डिस्टर्बेंस नहीं करेगा? आपकी आवाज प्रॉपर साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज जो सुनाई दे रही है उसमें केवल इतना पता चल रहा है कि कोई पेशेंट में स्ट्रक्चरल चेंज है और एंटीसाइकोटिक एंटीसिफिलिटिक दे रहे हैं तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। यस सर। हाई पोटेंसी देंगे तो क्या होगा? यस सर, यस सर। हाँ, तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जो एंटीसाइकोटिक है, जैसे आप वार्ड्स वगैरह में भी देखेंगे, ज्यादातर वैसे केसेस में आप लोग थोड़ा हायर पोटेंसी यूज करते हैं और कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे इवन इन द केसेस ऑफ यूटीआई, इवन इट इज वेरी मच साइकोटिक ट्रबल, साइकोटिक डिजीजेज, वहां भी आप थूजा 1M या मेडोरेनम 1M का दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केस, इट डिपेंड्स ऑन द केस। लेकिन कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक बहुत थॉरो केसेस आपने लिया
और प्रॉपर जान करके अगर आपने एक रूमेटिक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और उसको मेडारेनम हाई पोटेंसी दे दिया, तो वहां पे हो सकता है कि प्राइमरी एक्शन जबरदस्त हो जाए और वहां पर पेशेंट क्रिपल्ड कंडीशन में हो जाए, लाचार हो जाए चलने फिरने से, ऐसा भी है। लेकिन ये रिस्पॉन्स फिर भी जानलेवा नहीं होता है, क्योंकि जो ज्वाइंट पेन है उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, इसलिए ये सकम्ड नहीं होगा, डेथ नहीं होगा, वापस आ जाएगा। थोड़ा डिटेरिएशन होगा थोड़े समय के लिए, बट इट में कम और सूनर और लेटर ये रिकवर हो सकते हैं। ठीक है संदीप जी, नेक्स्ट एनी क्वेश्चन? पढ़े लिखे लोग? साक्षी कब वापस आओगे तुम? साक्षी रानी वापस नहीं आई शुरू से, और विजया रानी चलेगी। कुंदन कुमार भी छोड़ दिए, सोचे कि अब क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग कंक्लूड करेंगे। लेट अस सी द फाइनल स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर। टुडेज लेक्चर इज थैंक यू। तो वो विजय रानी खुश हो गई है कि अब लेक्चर खत्म हो गया है, अब वो अपना काम सब कर सकते हैं। सर हाँ 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 सर हाँ यहाँ पे जो इन्फ्रेंस दिया था ना, उसी में लिखा है ना कि द केस वाज इनक्यूरेबल। हाँ हाँ द केस वाज इनक्यूरेबल सर। हाँ, केस वाज सर अगर हम इनक्यूरेबल। लोग, हाँ, गलती यही करके हम लोग ने ये, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, अगर हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हो गया तो पेशेंट डेथ कर सकते हैं ना सर? हाँ, डेथ कर सकता है। अगर हमारे हाथ से डेथ हो गया तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं पेशेंट को? हाँ, अब वो कौन जानेगा आपकी वजह से हुआ है या डिजीज की वजह से, तो आप जान रहे हो ना, पेशेंट तो नहीं जान रहा है। इसमें डेथ नहीं। होने की बात हो सकती है, लेकिन ये हम क्यों करेंगे ये गलती? हम पढ़ किस लिए रहे? इसीलिए यही इसका इंपॉर्टेंस है। केंट्स का 12 ऑब्जर्वेशन पढ़ने का इंपॉर्टेंस यही है कि ये गलती को हमें रिपीट नहीं करना है। This should not be repeated in your clinical practice. This is what I wanted to focus over, कि आपको ये चीज की गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती फिर करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है बेबी थोई? उसको हम लोग अलग बात से बोलते हैं जो तुम नहीं जानते हो, बाकी लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। इसको तुम्हारे क्लास में बताए हैं 3rd ईयर में। क्वैक। हम बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो हम इतनी सारी बातें पढ़ाते हैं, सिंगल डोज देना, मिनिमम डोज देना, होम्योपैथी में ये है वो है, और अंत में जब पेशेंट आएगा कहेगा हमको ज्वाइंट पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बेलाडोना दो, इधर रस्टक दो, सुबह दोपहर शाम ये खाओ और 3 दिन ये खाओ, ऐसा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहते हैं कि कितना भी पढ़ा लो, सिमिलर होम्योपैथिक डोज एटसेट्रा एटसेट्रा सब रट लिए। ये कहानी कहाँ पे है? एक तोता था और पंडित के पास था, बेबी थोई के लिए बोल रहा हूँ। तो वो पंडित जो है रोज उसको ये सिखाता था कि देखो शिकारी आएगा, वो जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, तुम उसमें नहीं फंसना लोभ से। और रोज रटता था शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से। उसमें एक दिन शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और तोता उसमें फंस गया। तो बेबी थोई ये गलती नहीं करना है, इसीलिए इसकी पढ़ाई की जा रही है। ठीक है, और हम ये गलती कभी नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, कि जब भी कोई हमारे पास अगर रेनल फेलियर का केस आए तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू कम डोज से करेंगे। हो सकता है आपके हाथ से क्योर भी, ऐसे तो डिजीज इनक्योरेबल है। जैसे जितना क्रॉनिक रेनल फेलियर का डिजीज है, CRF का केस है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, CKD का केस है, ये सब कहा जाता है कि इनक्योरेबल है, ये क्योर नहीं होता है। जैसे लिवर सिरोसिस हो गया, लेकिन हम लोगों के मेडिसिन में ये कैपेसिटी हो सकती है कि हम लोग कीर्ति क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है जरूर। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग हो सकता है लो पोटेंशियल से शुरू करें, उसकी ससेप्टिबिलिटी को देख के शुरू करें, तो कुछ समय तक हम सस्टेन कर सकते हैं। क्या होता है, रेनल फेलियर का केस डायलिसिस पे चला जाता है, डायलिसिस पर भी हर डायलिसिस पे चढ़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन जब डायलिसिस पे पेशेंट चढ़ता है तो उसको नहीं मालूम रहता है कि ठीक से लौटेगा कि नहीं लौटेगा, क्योंकि देयर आर सेवरल इंस्टांसेस, सेवरल ओकेजन ड्यूरिंग इन्फ्यूजन और ड्यूरिंग
दिस व्हाट यू कॉल डायलिसिस, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो परेशानी शुरू होती है और पेशेंट को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ नमस्ते। अभी सर अभी क्लास ले रहे हैं सर, वही बात। हाँ तो ये होगी बात, हम क्या बोल रहे थे, सर क्या बोल रहे सर थे, कौन नाम? सर विद्या हाँ बोलो, विद्या आगे वापस। हाँ सर अगर कोई कैंसरस पेशेंट हो तो फिर उसके साथ कैसा पोटेंसी यूज करेंगे? हाँ, कैंसर केस में मॉडरेट पोटेंसी यूज किया जाता है, और कैंसर 2 स्टेज का होता है। एक तो ऐसा एडवांस स्टेज हो जाता है कैंसर का जो क्यूरेबल नहीं होता है, वहां पर हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें पैलिएशन अलाउड है। दीज आर केसेस सेड टू बी इनक्यूरेबल केसेस, एंड इन सच इनक्यूरेबल केसेस we need to take the case proper and tackle the case proper and handle the case proper, और moderate potency से देना चाहिए। समटाइम्स इसमें हाई पोटेंसी भी पड़ता है, जैसे पेशेंट अगर बहुत ज्यादा रेस्टलेस है तो आर्सेनिकम 1 mg पड़ता है। पेशेंट अगर बहुत ज्यादा पेन में है तो जैसे कि आप जानते हैं इफोर्बियम एक ऐसी दवा है, इफोर्बियम, जो कि कैंसर के पेन को बहुत आसानी से कंट्रोल करता है। खास करके आर्सेनिकम एल्बम, जहां पर कि कैंसर में मोस्ट ऑफ द केसेस में बर्निंग पेन रहता है और इसको बहुत आसानी से ठीक करता है, और उस बर्निंग पेन के कारण पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो सेवरल केसेस में थेरेप्यूटिकली, जो कि थेरेप्यूटिकली यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है कि आर्सेनिकम एल्बम कई बार काफी बेनिफिशियल साबित होता है। तो ऐसे केस में जहां पर क्योर पॉसिबल नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वहां पर 1 या 2 दवा भी दे सकते हैं, अलाउड है। क्यों? क्योंकि हम उस पेशेंट को सूदिंग दे रहे, क्योर करने के लिए नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं? हम उसको रिलीफ करने के लिए हम दवा दे रहे हैं। तो ऐसे केस को काफी हैंडल किया जा सकता है। और जो केस लौटाया हुआ है, कैंसर संस्थान से लौटाया हुआ वैसा केस जिसको 3 महीने 6 महीने और वो एक साल ट्रीटमेंट करके सारा कीमो रेडियो सब कुछ करने के बाद छोड़ दिया कि अब जाइए भगवान भरोसे, वैसा केस जब होम्योपैथ में आता है तब भी बहुत दिनों तक सस्टेन करते हैं और उन लोग रिलैक्स जिंदगी भी जी पाते हैं। लास्ट में तो फिर सबका टॉर्चरस डेथ होता ही है, वो सबसे छुपा हुआ नहीं है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ विजया, any other question? So by these Kent's 12 observation we would try to learn so many aspects of the clinical practice. तो इसको डिस्कस करके, हालांकि केंट्स में ये सारी बातें नहीं लिखी, ये तो हम और आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये सारी बातें हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास यही ओवर होती है जानवी, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे साकेत के साथ, और कुंदन कुमार चला गया है उसके साथ, और ऋषभ अटेंटिव रहिए। अब चूंकि ये तो पता चल गया कि केंट्स का 12 ऑब्जर्वेशन पढ़ाना है, तो अगला क्लास बहुत अच्छा होगा और बढ़िया होगा, चूंकि आप लोग पढ़ के आएंगे और समझ के आएंगे, तब आप आर्गुमेंट अच्छे से कर पाएंगे और तब समझ पाएंगे कि क्या आपको एसेंशियली मिला। वर्षा चली गई, ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, have a nice evening, goodbye. थैंक यू सर।